टीएमसी सांसद द्वारा धनखड़ की मिमिक्री करने के मामले पर आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और संसद परिसर में सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद का अपमान करने वाले गंभीर दुर्व्यवहार के बारे में अपनी गहरी चिंताओं और पीड़ा से अवगत कराया। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने का मामला अब राजनीतिक तुल पकड़ता दिख रहा है। इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया था। उन्होंने उपराष्ट्रपति धनखड़ से फोन पर बात भी की है। अब इस मामले को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि कल्याण बनर्जी ने ही उपराष्ट्रपति धनखड़ की मिमिक्री की थी। कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बहुत ही सम्मान करता हूँ। मेरा उनको ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। जहां तक बात मिमिक्री की है तो ये तो एक कला है। If he has taken on his shoulder, I'm really helpless. I have never any intention to hurt anyone. In our profession, we never do. We never hurt anyone. I did not intend to do it. I do not know why he is taking it on his shoulder. I have not said either it is Rajya Sabha or it is Lok Sabha. It's a mock parliament was going on. If he has taken on his shoulder, I'm really helpless. Does he really behave like this in the Rajya Sabha? That's my question. Now that's my question. No, I have never intended. There will be sin. Either you allow me to speak, otherwise you will. No. Then either you allow me to speak, or then. Now I will tell. I have never any intention to hurt anyone. Dhankar Sahab is also in my profession. He is a senior than me. He is also senior advocate. I am also senior advocate. In our profession, we never do. We never hurt anyone. I did not intend to do it. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गुस्सा हो गए जब उन्होंने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को उनकी नकल करते हुए वीडियो बनाया। विशेष रूप से संसद के मकर द्वार पर अन्य निलंबित सांसदों के साथ विरोध प्रदर्शन के दौरान कल्याण बनर्जी को उपराष्ट्रपति की नकल करते देखा गया, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपने फोन का उपयोग करके तृणमूल सांसद का वीडियो बनाते देखा गया था। Which was withdrawn later on. You used Twitter, official handle of the spokesperson, to demean me, insult my background as a farmer. The House will meet at 3 p.m. today. Honorable members, I have urged the House. तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने तमिलनाडु में मौजूदा बाढ़ की स्थिति के बारे में बात की। उन्होंने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर खराब शासन का आरोप लगाया। अन्नामलाई ने कहा, दक्षिणी तमिलनाडु में तबाही बहुत अधिक है। संपत्ति, कपड़े और सामान का काफी नुकसान हुआ है। उफनती नदी घरों के अंदर तक आ गई है। कई घर पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। लोगों ने सब कुछ खो दिया है। मवेशियों की हानि हुई है। क्षति बहुत गंभीर है और संकट की इस घड़ी में हम उनकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम दिल्ली में बैठकर क्या कर रहे हैं?
That is very unfortunate when we have our MLA, Nainar Nagendrana, right from day one, who is here doing all the rescue and relief efforts, and the district president, Daya Shankarji, who is doing all the hard work. What is the CM of Tamil Nadu doing? Sitting in Delhi, participating in Indy Alliance. When this is having historic rains, damage is catastrophic. The CM of Tamil Nadu is more hell-bent on what the Indian Alliance is doing, meeting Arvind Kejriwal, meeting Sonia Gandhi madam. The worst part, he has sent his son Udayanithi Stalin here. He lands up here with a cinema director. Nonsensical approach to governance. Sir, we are standing in Tirunelveli along with our assembly floor leader and the MLA of Tirunelveli city, Nainar Nagendran Anna, district president, all the volunteers and workers at the grassroots level. The devastation in the South Tamil Nadu is of an extremely high magnitude. We are standing in a place that is very close to the Tamarabarani river, and all the people are in a Mantapam, which is run by the BJP party. They are staying here. There is a substantial loss, either a property or people have lost their certificates, their clothing, their belongings, especially in the area that is along the bank. संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने संसद भवन परिसर स्थित गांधी मूर्ति पर एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दोनों सदनों से निलंबित किए गए सांसदों के साथ साथ सभी दलों के नेता शामिल हुए। लोकतंत्र बचाओ के पोस्टर और बैनर के साथ गांधी मूर्ति पर एकत्र हुए विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांधी मूर्ति पर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों के साथ साथ नए संसद भवन तक पैदल मार्च भी किया। आपको बता दें कि संसद में लगातार जारी हंगामे पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को लोकसभा के 49 और सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया था। ये देखिए, वो पर्पसली सबको सस्पेंड करके कोई अपोजिशन के नेताओं ने हाउस में नहीं आना और चर्चा में हिस्सा नहीं लेना, उनके जो 3 बुरे कानून आ रहे क्रिमिनल प्रोसीजर के, ये इसको कोई विरोध नहीं करना, ये उनका मंशा है। एक दूसरी उनकी मंशा है कि सबको बाहर निकाल के कि एक डिक्टेटरशिप चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं और ये डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा। आज नहीं कल उनको ये भारी पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों के सामने जा रहे हैं और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी भी है। आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर कल भी हम ऐसा ही प्रोटेस्ट करेंगे जब तक वो खुद आके सबको सबका सस्पेंड रिवोकेशन करके चर्चा को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खलिस्तानी अलगाववादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिका में हत्या की साजिश के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। द फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगर कोई हमें कोई जानकारी देता है तो हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत के दौरान इस संबंध में पेश किए जाने वाले सबूत की जाँच कराने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि छिटपुट घटनाएं संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच मजबूत संबंधों को बाधित नहीं करेंगे। इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगर कोई हमें जानकारी देगा तो हम उसकी जांच जरूर करेंगे। चाहे हमारे नागरिक सकारात्मक या नकारात्मक कार्यों में शामिल हो, हम इस मामले की जांच करने के लिए तैयार हैं। हम कहीं भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समर्पित हैं। यूपी के मुरादाबाद में किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की सबसे ऊंची 41 फीट की प्रतिमा लगाई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जन्म शताब्दी पर इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अखिल उत्तर प्रदेश जाट सभा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें जाट समाज ने सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम में 1 लाख लोगों के पहुँचने का दावा किया जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजकों के मुताबिक
उन्होंने सभी जाट और किसान नेताओं को कार्यक्रम का निमंत्रण भेजा है। चौधरी चरण सिंह की विरासत पर अपना हक जताने वाले रालोद और लोकदल को मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम से झटका लग सकता है। निमंत्रण रालोद नेता जयंत चौधरी को भी भेजा गया है। अगर वो इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो ये पहला मौका होगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी एक साथ मंच पर मौजूद होंगे। दुनिया भर में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला देने वाली महामारी कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर अब कर्नाटक में भी चिंता बढ़ने लगी है। यहाँ एक 64 साल के व्यक्ति की मौत कोरोना की वजह से हुई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया है कि उनके ब्लड सैंपल को जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा गया है ताकि पता लगाया जा सके कि उनमें कोरोना के किस वेरिएंट का संक्रमण था। हालांकि अभी साफ नहीं है कि नए वेरिएंट की चपेट में आने की वजह से ही बुजुर्ग की मौत हुई है या नहीं। बहरहाल केरला के बाद पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी एक व्यक्ति की मौत से चिंता बढ़ गई है। इसके पहले केरला में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 से एक व्यक्ति को संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। उसके बाद 24 घंटे के दौरान केरला में 3 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। पड़ोसी राज्यों में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने अतिरिक्त तौर पर सतर्कता बरतनी शुरू की थी। बुजुर्गों और कोमोर्बिडिटी से संक्रमित लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट के संक्रमण के खतरे और उसे निपटने की तैयारियों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बैठक में कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य को मिलकर एक संपूर्ण सरकार के अप्रोच से काम करने की जरूरत है। हॉस्पिटल्स को तैयारियों की मॉक ड्रिल करनी होगी और कोविड की निगरानी बढ़ानी होगी। साथ ही लोगों के साथ प्रभावी कम्युनिकेशन भी रखना होगा ताकि समय रहते संक्रमण पर काबू पाया जा सके और प्रभावितों को सही इलाज मुहैया हो। उत्तर प्रदेश मथुरा स्थित शाही ईदगाह और वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर मौलाना अरशद मदनी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कोर्ट के फैसले को लेकर भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट हमारी कोर्ट है, उस पर हमारी आस्था है। मदनी ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सम्मान होना चाहिए। मथुरा और वाराणसी में सर्वे के सवाल पर मदनी ने कहा कि सर्वे कराने में कोई हर्ज नहीं है। अगर सर्वे सही होगा तो वहाँ मस्जिद ही निकलेगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या वाली जगह हमारी थी, उसके बदले में अगर मस्जिद के लिए जमीन दी जाए तो उसे लेने के हक में हम नहीं हैं।